Sonia Sharma is a passionate and driven parachuter who has carved a remarkable path in shooting sports through hard work, precision, and perseverance. A true inspiration, Sonia began her journey in 2015 and quickly made her mark by winning medals at major state and national level competitions. She represents the spirit of parasports, breaking barriers and achieving excellence despite challenges. Today's interview by our young Goenkans. Goenkan Namaskar. Goenkan Namaskar. Welcome to Shakhsiyat, brought to you by Gap, where we shine a spotlight on different personalities who have made a mark their respective fields. I am Bilal Ahmed. And I am Riddhima Pachauri. Riddhima, do you know who is going to be our guest today? I'm not really sure. Would you help me with that? Yes, I can give you some hints. Sure. She is a national and international level sports person. She is strong. She is brave. She is persistent. And she is goal orientated. Now can you see who she is? I'm not really unable to guess. Would you help me with that again? Our guest for today is Miss Sonia Sharma. Sonia Sharma, none but the rifle shooter who have made a mark in rifle shooting, whether it is international or national level. Okay then, what are we waiting for? Let's call her and begin this session. Hello ma'am, we're very glad to have you with us here today. And we are very eager to know about your great personality. We are curious and thank you very much for giving us your precious time. So, can you please tell us about your childhood, your parents, your family and your profession? What were you like as a child? A naughty, mischievous or a serious child sometimes? Well, thank you for inviting me here. So, if I talk about my childhood, I was a very naughty kid at that time, and in my family, मेरे पापा ने मुझे बहुत support किया है, like being a differently abled child. उन्होंने मुझे इस तरीके से raise किया है कि like if I talk about my one childhood memory is कि when me and my sister were riding a bicycle, तो मेरी सिस्टर की साइकिल में सपोर्टर्स होते थे और मेरी साइकिल में सपोर्टर नहीं होते थे, बिकॉज मेरे फादर की थिंकिंग ऐसी थी कि मैं इसको शुरू से ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि आगे चल के इसको कुछ भी मुश्किल ना लगे. तो आई थिंक बिकॉज मेरी फैमिली का सपोर्ट इतना रहा है, मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे मदर और मेरी सिस्टर ही हैं, तो उनका सपोर्ट इतना रहा है कि आज जो मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ देम ओनली. Indeed ma'am, we have such great parents. मेरे पापा भी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. And I have one more question. We got to know that you're posted in Income Tax Department. Well, yes, I'm working in Income Tax Department as an Income Tax Assistant, and I got this job in 2023. And the best part is कि मुझे ये job under sports quota मिला, तो it's like icing in the cake for me. Ma'am, like everybody in this world has an aim. I have an aim. I'm pretty sure Riddhima also has an aim. Ma'am, so can you please tell us, did you always want to become a rifle shooter? So, I'm little dicey in this question because मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे शूटर ही बनना है, बट मुझे शुरू से माइंड में ये था कि मुझे 9 to 5 वाला जॉब तो बिल्कुल नहीं करना है. तो जब मैंने 2012 में अपने स्कूल के समर कैंप में राइफल पिक की और मैंने बुलसाई हिट किया, तो सब मुझे ऐसे प्रेस करने लग गए कि आप कुछ इसमें कर सकते हो. तो मुझे लगा ओके, आई कैन डू समथिंग इन दिस गेम. So ma'am, I would like to ask you, how do you feel coming to Goenka's Achiever platform, Shakhsiyat? And what do you think about Goenka's initiative? Well, I think ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. Like when I got a call from your team, so I got very excited because I feel like
कि जिनी गोइंका ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, I mean this is very good for the students, for the kids as well, like to like giving some good skills to them, like talking skill, and it's a very good platform for the guest as well कि वो अपना journey बता पाए. Like if I'll speak and if I talk about me, I think ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं एक कोई अपनी बात से अगर किसी को भी इंस्पायर कर सकती हूँ और वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सकते हैं इससे, तो ये मेरे लिए लाइक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी बात कह पाऊँ और कोई इस बात से कुछ सीख पाए. Thank you, ma'am. Now, my friend Bilal would ask a question. Ma'am, what inspired you to take up rifle shooting despite your unique strengths? Can you tell us what challenges do you face? Okay, so it was quite challenging when I start this game. So basically rifle जो होता है वो काफ़ी heavy होता है, and for a single hand person it was very difficult for me to hold the rifle with one hand. So उसमें मैं credit देना चाहूँगी अपने कोच को. उन्होंने मतलब बहुत हेल्प किया उस टाइम. इफ़ यू पीपल लाइक नो अबाउट राइफल, तो उसका जो बट होता है उसको हमने थोड़ा ट्रिम किया ताकि वो मेरे इस वाले हाथ पर एडजस्ट हो पाए, एंड देन आई सपोज टू लिफ्ट माई राइफल. और एक बार तो मैं एक टूर्नामेंट खेल रही थी और उसमें इन बिटवीन टूर्नामेंट के मेरे इस वाले हैंड से ब्लड आने लग गया, बिकॉज जनरली पीपल होल्ड विद 2 हैंड्स, तो उनको दूसरे हाथ का सपोर्ट मिल जाता है. एंड एक हाथ से उठाने पर दूसरे हाथ के सपोर्ट से तो जब लाइक ब्लड निकला तो मेरे कोच ने बोला कि यहीं गेम स्टॉप कर दो, इट्स फाइन. बट मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पूरा लाइक एंड करके ही उसको वो करना है, एंड आई गॉट सिल्वर मेडल इन दैट टूर्नामेंट. तो फिर उसके बाद मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया कि आई थिंक सोनिया पिस्टल पर स्विच करते हैं, बिकॉज राइफल शूटिंग जो है वो आफ्टर स्टेट कंपटीशन आपको पीप साइड राइफल पिक करनी पड़ती है. उसका वेट होता है अराउंड 6 kg आई गेस. तो वो मैं सिंगल हैंड से पिक नहीं कर पाती, तो मेरे कोच ने मुझे पिस्टल पर स्विच कराया. तो अपने इस इंसिडेंट से मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में हर्डल्स आते हैं, स्टार्टिंग्स में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, बट इफ़ देयर इज़ अ विल देयर विल बी अ वे, एंड देयर इज़ अ वे. तो अगर मैं उसी टाइम हार मान लेती कि नहीं हो पा रहा, मुझे छोड़ना चाहिए, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती. तो आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए विदाउट एनी हासल. थैंक यू. Challenges lead to success. That's true, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, would you let us know what is your daily routine and how many hours do you practice in a day? Okay, so before my job, I was into shooting only, but after job, I start managing the things. So पहले मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक मेरा पूरा शूटिंग रूटीन ही रहता था. मॉर्निंग में मेडिटेट करना, फिर शूट करना, फिर ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए रेस्ट करना, फिर शूट करना, देन जिम जाना. अब जैसे मैं जॉब पर भी जाती हूँ तो मेरा रूटीन ये रहता है कि फर्स्ट हाफ जो है मैं अपना शूटिंग को दूँ और सेकंड हाफ जो है मैं वो अपने जॉब को दूँ. तो आई थिंक मेरे को आफ्टर गेटिंग माई जॉब मेरे को मल्टीटास्किंग भी करना आया है. लाइक समटाइम इट्स अबाउट क्वालिटी नॉट अबाउट क्वांटिटी. सो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शूटिंग को इतने साल दे दिए हैं, तो अब मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ रादर देन क्वांटिटी पे. Yes, ma'am. Even I am a badminton player. I go to school, then going home, eat lunch, and then do my practices, and vice versa. Ma'am, you have achieved great success in your sport. Can you tell us how you feel about achieving this? Well, I think कि आपकी लाइफ में ना एक ड्रीम होना चाहिए, एंड आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि आप उस ड्रीम को चेस कर पाएँ. सी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाऊँगी,
बट मुझे ये पता था कि जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ मैं उसे पूरा होल हार्टेडली करूँ। तो मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव अ ड्रीम इन योर माइंड, आप फुली फोकस्ड होकर उसे अचीव करने में लग जाओ एंड ड्रीम डू कम ट्रू, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। तो आई फील लाइक कि इफ़ यू गिव योर 100% इन टू द थिंग्स विच एवर द थिंग्स आर इन योर गेम, इन योर स्टडीज़, इन योर को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, बट आपको उसमें अपना 100% देना है, तभी आप वैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर पाओगे या अचीव कर पाओगे जो आपने सोचा है। तो मैंने ये ज़रूर सोचा था कि हाँ, मैं एक टाइम पर एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ सबके लिए। सो बीइंग अ गर्ल बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप कैसे अपना लाइक ड्रीम कंटिन्यू करो और परस्यू करो। एंड बीइंग अ फिजिकली चैलेंज पर्सन, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर माय फैमिली एज वेल। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके सराउंडिंग्स और आपके अपब्रिंगिंग्स बहुत मैटर करता है। तो जो भी आप अचीव करो, मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि वो कुछ चेंज ला पाए अदर पर्सन्स की लाइफ में। Being a girl, I can relate to this. And I would like to question what was going through your mind when you won your first major tournament, first major international tournament, and how did it impact your career? ओके, सो मेरा जब इंडियन शूटिंग टीम में सिलेक्शन हुआ था तो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था और उसमें मेरा 6th रैंक आया था। तो दैट टाइम पूरा टीम लाइक दुबई घूमने गया था, दैट बुर्ज खलीफा एंड एवरीथिंग, बट आई वाज द ओनली वन कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी इंजॉय नहीं करूँगी अनटिल और अनलेस मैं अपना फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल नहीं ले लेती। तो मैं वहाँ कहीं भी नहीं गई। तो मेरा सेकेंड जो टूर्नामेंट था, जो वर्ल्ड कप था, वो बैंकॉक में था। तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था टीम में एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल। तो उसके बाद एक्चुअली जो लाइक लाइमलाइट आपको मिलता है, everyone start tweeting about my journey, about my life, about each and everything about me only. तो वो बहुत अच्छा लगता है आपको कि एटलीस्ट जो आपने किया वो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और जब मैं लाइक ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़ रही थी और उसमें ऐसा लिखा आ रहा था कि हर घर में ऐसी बेटी होनी चाहिए, तो दैट लाइन हिट मी लाइक वेरी डीपली कि मुझे ऐसा लगा फाइनली जो मैं करना चाहती थी वो इम्प्रेशन मैंने लोगों पर छोड़ा। Thank you so much, ma'am. Ma'am, my question is, how do you adapt yourself in your shooting technique to showcase your unique ability? What challenges do you face in every competition? Okay, so if I talk about shooting is a mind game, right? So I'm very much opposite to my game because I'm a very, like extrovert kind of a person. I love to talk, like मुझे बात करना बहुत पसंद है और शूटिंग में आपको बहुत calm and composed रहना पड़ता है when you are shooting because we are humans, we are not robots, right? So जब आप शूट करते हो तो इतने थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। आपको जब दिख रहा होता है कि ओ मैं विन कर रही हूँ तो आप और ज़्यादा आपकी हार्ट बीट लाइक बढ़ जाती है। और जब आपको लगता है उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा जिस अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो तो आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आई स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। सी मेडिटेशन नॉट फॉर शूटिंग बट फॉर एवरीथिंग। आई थिंक मेडिटेशन इज अ की टू लाइक कंट्रोल योर माइंड। सो व्हाट आई डू मोस्ट इज मेडिटेशन बिकॉज उससे ही मैं काम एंड कंपोज्ड रहती हूँ और मैं अपनी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर पाती हूँ। अपने इमोशंस को as much as possible मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। तो आई मस्ट से दैट फॉर मी meditation is a key. So yeah. So ma'am, meditation is the key. I've never tried it before, but since you've said it, I'm going to try it for sure now. Thank you so much, ma'am. Ma'am, our audience has a big question. Would you tell us about an incident
which took a turn, which took an unexpected turn and changed your life, changed your mindset? वेल सो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट आता ही है. मेरी लाइफ में दो मेजर टर्निंग पॉइंट्स आए. पहला ये, जब मेरे फादर एक्सपायर्ड हुए. सबको पता होता है कि लाइक डॉटर्स के लिए उनके फादर लाइक कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो उस टाइम मुझे बहुत बड़ा लाइक कह सकते हैं कि धक्का लगा कि मतलब अब मैं क्या करूँगी, किसे मैं दिखाऊंगी, कौन प्राउड करेगा, बिकॉज आज जो भी मैं हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ. देन मैंने सोचा कि जब हमारे जो करीब होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स बोल लो या जो भी हमारे करीब होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो वो फिर भी कैसे ना कैसे हमारे साथ रहते ही हैं. तो मेरे को ये था कि मेरे डैडी मुझे लाइक ऊपर से देख रहे होंगे तो मैं अपना बेस्टेस्ट दूंगी उनको प्राउड फील कराने के लिए, कि उनको लगे जो भी उन्होंने किया वो मैंने वेस्ट नहीं किया. सेकंड जो मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट आया था वो ये कि इन 2021 मेरे को आई गॉट अ स्नेक बाइट एंड द स्नेक वाज कोबरा एंड आई वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 5 days. तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि नहीं, इनका डेथ सर्टिफिकेट बना दो, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन 40 ड्रॉप हो गया था. दे सेड कि नहीं हो पाएगा, मतलब रिवाइव नहीं कर पाएंगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. तो दैट टाइम आई वाज सो स्ट्रॉन्ग कि नहीं, मैंने अभी लाइक जितना अचीव करना है उतना नहीं किया है. तो एक होता है ना कि आपकी सब ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अपनी विल पावर दिखाओ, विल पावर दिखाओ. तो उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि विल पावर कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. बट मुझे एक और लेसन मिला कि हम कभी कभी चीज़ें ऐसे छोड़ देते हैं ना कि नहीं, ये कल करेंगे या ये उस दिन करेंगे, ये मैं नई ड्रेस लेके आई हूँ, ये मैं उस दिन पहनूंगी. तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो कल आता ही नहीं है. तो जो आपका प्रेजेंट है ना, अब वो इंजॉय करो. तो उस इंसिडेंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एवरी डे इज स्पेशल फॉर यू. आप हर दिन ऐसे जियो कि हाँ, यही आपका लाइक आखिरी दिन है, क्योंकि यू नेवर नो विच डे इज योर लास्ट डे. सो या. Yes, ma'am. Willpower is very necessary and it matters the most in our life. And if somebody asks me that how can you define Sonia Sharma, I'll just say 3 adjectives: strong, brave and confident. Ma'am, you're an inspiration. You're a role model to many people, especially those people with unique abilities. What message would you like to convey to them? ओके, सो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि जिस चीज़ में भी आप हो, आप उसमें अपना 100% दो. बिकॉज इन स्टार्टिंग चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं कि हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी. आई थिंक नेवर एवर क्वेश्चन योर सेल्फ. कभी भी अपने अंदर सेल्फ डाउट मत लाइए. इफ़ आप अपने को लेकर 100% श्योर होंगे ना, तो चीज़ें भी उस अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएंगी. Now, for me, my mother is my role model. I'm pretty sure everybody here has a role model. Can you please tell me who is your role model? ओके, सो रोल मॉडल का तो मुझे इतना मैं नहीं कह पाऊँगी, बट जिस पर्सन ने मुझे इंस्पायर किया है शूटिंग परस्यू करने में, वो हैं अभिनव बिंद्रा सर. बिकॉज जब उन्होंने क्या बोलते हैं 2008 में ओलंपिक का मेडल लिया था, गोल्ड मेडल, तो तब मेरे फादर ने बोला था कि ये देखो, इन्होंने हमारे इंडिया के लिए कुछ किया है. तो तब मुझे लगा था कि ऐसे ही मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपनी कंट्री के लिए. तो तब अभिनव बिंद्रा सर थे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया. एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड इज़ कि मैं क्यों ये बोलती हूँ कि ड्रीम डू कम ट्रू, इसीलिए क्योंकि मेरा शुरू से था कि मेरे को एक दिन अभिनव सर से मिलना है, अभिनव सर से मिलना है. तो जब मैं 2017 में उनकी फाउंडेशन से स्पॉन्सर हुई, तो मैं उनसे लाइक ऐसे मिली कि मतलब एक मीटिंग हॉल में सिर्फ सर थे और मैं थी. तो आई वॉज शिवरिंग एट दैट टाइम. बट उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो भी मैंने सोचा था
मेरी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। तो स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ। Ma'am, are there any projects that you are working on or you're planning to introduce them to us in the near future to support shooting sports or people with unique abilities? So yeah, I'm working on multiple projects. तो अभी उन पर काम चल रहा है, तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट जैसे ही मैं उसके कंक्लूजन पे या पूरा इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ, आई लव टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। Sure, ma'am. Ma'am, how has your experience in rifle shooting impacted your life? And what lessons have you learned along the way? ओके, सो लर्निंग कभी रुकती नहीं है। सिंस चाइल्डहुड जब तक टिल योर डेथ लर्निंग चलती रहती है, एंड एवरी डे यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर fellow shooters, from your juniors and from your coaches, from your seniors as well, right? So मैंने shooting से बहुत कुछ सीखा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं यही कहूँगी जो मैंने शूटिंग से सीखा है वो ये कि खुद को शांत कैसे रखना है, बिकॉज आपके दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे होते हैं और आपको शूट करना पड़ता है, तो आप खुद को कैसे काम रख सकते हैं वो मैंने शूटिंग से सीखा है। एंड स्टेबल खुद को एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज वी आर ह्यूमन। जब हम सांस लेते हैं तो भी हमारी बॉडी मूव करती है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है कि कौन से मोस्टली सबका ऐसा होता है कि अगर आप शूटर हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होगी, बिकॉज ये एक इंडोर गेम है, राइट? बट मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि शूटिंग में भी आपको बहुत फिजिकली खुद को फिट रखना पड़ता है, आपको अपने कोर पे फोकस करना पड़ता है कि जब आप 3 आवर्स कंटिन्यूसली खड़े होते हो तो उसमें आपका कोर का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फिजिकली फिट रहना भी मुझे शूटिंग ने ही सिखाया, डिसिप्लिन भी मुझे शूटिंग ने ही सिखाया। तो ये चीज़ें बहुत आपकी हेल्पफुल रहती हैं और बहुत कुछ सिखाती हैं आपको। Yes, ma'am. Ma'am, as we all know, every successful person has a secret success achieving mantra in their life. We would like to know what is that success mantra that you would like to share to us? Well, a success mantra ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं होता, बट जिस चीज़ पर मैं रिलाई करती हूँ वो है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली कोई काम करोगे ना, कि आप एक बार फेल हो गए, आप 2 बार फेल हो गए, बट थर्ड टाइम आपको समझ आएगा ना कि आप क्या कर रहे हो। और आई नेवर गो विद दैट फेस कि आप सक्सेस और फेलियर, ये नहीं होता। आई फील सक्सेस होती है या एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, आप कभी फेल नहीं होते। वो आपके रॉन्ग अटेम्प्ट आते हैं जो आपको राइट कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो फॉर मी जो मेरे लिए वर्क करता है, इट्स डेफिनेटली कंसिस्टेंसी। Yes, ma'am. Being consistent in life is very mandatory. Ma'am, this is our show Shakhsiyat, in which every Saturday we call a famous celebrity and ask the students to interview him or her. So ma'am, the last question that I want to ask you is that can you kindly share your thoughts regarding gap and a message to our Goenkans? So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करके। आई मेक श्योर आई विल मेक यू मोर प्राउडर, एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो एशियन गेम्स या पैरालंपिक का मेडल विन कर ही आऊँ। एंड आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल सर मिस्टर पुनीत and GAP team members as well, and you two sweet students. And the message I want to give to each and every person is that either you are unique, either you are differently able, just chase your dream, and if there is a will, there is a way. Give your 100% in whichever field you are. And for the differently able people I want to say, because ये मुझे बहुत अच्छा कोट लगता है जो मैं जनरली यूज़ भी करती हूँ, वो ये they laugh at me because I'm different, they laugh at me because I'm different,
and I laugh at them because they all are same. Thank you. Ma'am, it's been a privilege to hear about your journey. We will see you wherever your talent takes you with continued success. Thank you, ma'am. Thank you for your precious time. It truly was a very knowledgeable session and I got to learn so much. Thank you. My pleasure. Goenka Namaskar. Goenka Namaskar. Thank you. Ma'am, this was a very productive session. I learned a lot, Ridhima learned a lot, and I'm pretty sure that the audience as well learned a lot. Stay tuned to Shakhsiyat. We will be here, same time, same show. Goenka Namaskar. Goenka Namaskar.